یہ کہانی ہے تین دوستوں کی، جن میں ایک تھا کوا، دوسرا کبوتر اور تیسری تھی ایک پیاری سی چڑیا۔ یہ ہمیشہ اکٹھے ہی رہتے تھے اور اکٹھے ہی کھانا ڈھونڈنے جاتے تھے، مگر اسی جنگل میں ایک چیل بھی رہتا تھا جس کی نظر ہمیشہ ان تینوں دوستوں پہ رہتی تھی اور وہ انہیں کھانا چاہتا تھا۔ کتنے موٹے تازے ہیں یہ تینوں پرندے، ان کو دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی ہی آ جاتا ہے، مگر ہمیشہ یہ تینوں اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ اگر یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو میرا کام تو آسان ہو جائے گا۔ یہ تو جہاں بھی جاتے ہیں اکٹھے ہی جاتے ہیں، میں انہیں پکڑ کر کھا بھی نہیں سکتا، مگر کتنے دن یہ مجھ سے بچیں گے؟ کسی نہ کسی دن تو میں ان کو اپنے پیٹ میں ڈال کر ہی رہوں گا۔ ہا 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 ہا۔ ظالم چیل بیٹھ کر ان تینوں دوستوں کو کھانے کا سوچ رہی ہوتی ہے کہ تبھی کبوتر کی نظر چیل پر پڑتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کو خبردار کر دیتا ہے۔ تبھی وہ تینوں دوست وہاں سے اڑ جاتے ہیں، مگر ان کے اڑتے ہی چیل بھی ان کے پیچھے پیچھے اڑتی ہے اور ان تینوں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے۔ چیل چونکہ بوڑھی ہو چکی تھی اس لیے وہ ان تک دیر سے پہنچ پا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے ٹوڈی چڑیا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنے دوستوں سے کہتی ہے، دوستو، ہم اس بوڑھی چیل سے ڈر کر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم تین ہیں اور چیل تو ایک ہے، اور ہماری چونچیں بھی بہت تیز ہیں۔ ہم تینوں اگر مل کر اس چیل کا مقابلہ کریں تو ہم تو اس کو منٹوں میں ہرا دیں گے۔ چڑیا کی بات کبوتر اور کوے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی چیل ان کے پاس آتی ہے وہ تینوں مل کر چیل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ بچاؤ بچاؤ، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کسی بوڑھی چیل کو ایسے مارتے ہو؟ بچاؤ مجھے، کوئی تو بچاؤ۔ پیارے دوستو، آگے کی کہانی دیکھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آپ اور بھی کہانیاں دیکھ سکو۔ آج تو بہت اچھا مزہ چکھایا ہے ہم نے اس چیل کو، مجھے لگتا ہے آئندہ یہ کبھی کسی پرندے کو تنگ کرنے کا نہیں سوچے گی۔ تھوڑی دور درخت پر بیٹھی چیل ابھی بھی ان پر نظر رکھے ہوئے تھی، اب تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھی۔ ان تینوں کو ابھی میرا پتہ نہیں ہے، ان کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ آئندہ کوئی بھی پرندہ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اور پھر بہت سارے دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں، مگر چیل ابھی بھی ان تینوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ایک دن کبوتر ندی کنارے پانی پینے جاتا ہے کہ چیل اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس سے دیکھ کر کبوتر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس وقت کبوتر بالکل اکیلے تھا۔ ارے نہیں نہیں کبوتر بھیا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کھانے نہیں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ تم جو بھی کہہ لو، میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا، تم کبھی بھی نہیں سدھر سکتی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم میرا یقین کرو یا نہیں، مگر جنگل میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا یقین تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے ارد گرد دیکھو، جنگل میں کالو کوا اور چڑیا تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ تم ان کے بنا کچھ بھی نہیں، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ آخر چیل نے اپنا کام کر دکھایا، اس نے کبوتر کے دل میں دوستوں کے بارے میں بری باتیں ڈال دی تھی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، دیکھو تو کیسے بیٹھ کر میری باتوں پر غور کر رہا ہے۔ اب ان تینوں کو مزہ چکھاؤں گی میں۔ ایک دن ایسے ہی کالو کوا مل جاتا ہے چیل کو۔ چیل کو اپنا کام آسان لگنے لگ جاتا ہے اور وہ کالو کوے کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ایک دن چڑیا کو اکیلا پا کر وہ چڑیا کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس نے اپنا کام کر دیا تھا، تینوں دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا تھا۔ ظالم چیل، میں خوب سمجھ رہی ہوں تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ چیل کو کرارا سا جواب دے کر چڑیا اپنے گھر کی طرف جاتی ہے کہ راستے میں اسے اپنے دوست مل جاتے ہیں۔ رانو چڑیا، آج کل تمہارے بارے میں
मुझे बड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं। तुम छोटी सी चिड़िया अपने आप को समझती क्या हो? ये तो हमारी वजह से तुम बची हुई हो अब तक। रहने दो कालू। जितने तुम बेवकूफ हो सभी जानते हैं। बस तुम्हें चालाकियां और चोरियां ही करनी आती हैं। हमारे से दूर रहा करो। मैं भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करता। अब आएगा मजा, देखना तीनों को कैसे मजे से खाऊंगी। तुम तीनों मुझसे बच नहीं पाओगे। और फिर तीनों चिड़िया, कौवा और कबूतर हमेशा अलग-अलग खाना ढूंढकर खाते और हमेशा अलग ही रहते, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। तीनों दोस्त बेखबर थे कि चील अभी भी उन तीनों पर नजर रखे हुए है। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। आज तो लगता है मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है। ये नन्ही चिड़िया अकेली यहाँ बैठी हुई है। अब इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के बगैर बहुत ही ज्यादा उदास थी। वो खतरे से बेखबर आराम से बैठी हुई थी कि तभी वहां पर चील आ जाती है और जैसे ही चील उस पर झपटने की कोशिश करती है, रानो चिड़िया वहां से उड़ जाती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। कालू, कबूतर भैया, कोई तो मुझे इस चील से बचाओ। कहाँ हो तुम लोग? मुझे बचाओ। अरे ये क्या? वो तो रानो चिड़िया तेजी से उड़ती जा रही है और उसके पीछे तो चील भी है। मगर मैं क्या करूं? मैं नहीं जाऊंगा उसे बचाने। कितनी बुरी बुरी बातें सुनाई थी उसने मुझे। नहीं नहीं, मुझे अपनी दोस्त को बचाने जाना चाहिए। ऐसी बातें तो जिंदगी में होती ही रहती हैं। मुझे इस वक्त अपनी दोस्त की मदद करनी चाहिए। कालू कौवा सारी बातें भुलाकर अपनी दोस्त को मुश्किल में देखकर उसको बचाने के लिए तेजी से उड़ता हुआ चील की तरफ जाता है। वहीं पास ही बैठे हुए कबूतर की नजर भी इस सारे मंजर पर पड़ती है कि रानो चिड़िया के पीछे चील जा रही है और कालू कौवा भी उनके पीछे जा रहा है। ओह, ये क्या हो गया? ये सारा काम तो इस चील का था। उसने ही हम तीनों दोस्तों को लड़वाया है और अब हम तीनों को खाने की कोशिश कर रही है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कबूतर क्योंकि बहुत ही समझदार था, सारी बात समझ आते ही वो तेजी से उड़ता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल जाता है। अब रानो चिड़िया आगे आगे थी और चील उसके पीछे पीछे था और चील के पीछे ही कबूतर और कौवा भी तेजी से उड़ते हुए उन तक पहुंच जाते हैं और चील को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करते हैं। इस कहानी से प्यारे दोस्तों हमें सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। हमें कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने दोस्तों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमेशा मिलजुल कर सलूक इत्तेफाक से रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मजे की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था। जंगल के सभी परिंदे बहुत ज्यादा परेशान थे। सुंदरी कवि भी काफी देर से खाना तलाश कर रही थी, मगर उसे कहीं दाना नजर नहीं आया। तभी उसे रानो चिड़िया नजर आती है। मेरा तो उड़ते उड़ते बुरा हाल हो गया है। रानो चिड़िया, तुम ये दाना कहाँ से लाई हो? मैं तो दाना तलाश करते करते थक गई हूँ, मगर नदी के आसपास भी कहीं कोई परिंदा भी नहीं और दाना भी नहीं। आप सही कह रही हैं सुंदरी बहन, हमारे जंगल में तो दाना बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मैं ये दाना तो दूसरे जंगल बहुत दूर से लेकर आई हूँ। रानो की बात सुनकर सुंदरी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। फिर वो उड़ने का सोचती है और खाना तलाश करती है। उड़ते उड़ते वो जंगल के काफी अंदर चली जाती है, मगर उसे उड़ते हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक जगह उसे कुछ दाने पड़े हुए नजर आते हैं। वो दानों के पास जाकर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है। ये रानो चिड़िया तो खुद को पता नहीं क्या समझती है। कह रही थी हमारे जंगल में खाना खत्म हो गया, मगर यहाँ तो इतना सारा दाना पड़ा है, खुद भी खाऊंगी
और थोड़ा मेरे कालू जी के लिए भी लेकर जाऊंगी। सुंदरी कवि अभी अपने आप से बातें ही कर रही थी कि अचानक से एक जाल आकर उसके ऊपर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया? ये तो किसी शिकारी ने जाल बिछा रखा था, कोई तो मुझे बचाओ। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हाय हाय हाय, ये क्या? इतने दिन से जाल बिछा रखा था और उसमें फंसी भी तो क्या एक काली कव्वी। चलो है, इतने दिन की भूख है, इस काली कव्वी को ही खाकर गुजारा कर लूंगी। नहीं नहीं चील बहन, मुझे मत खाना। मुझे खाओगी तो तुम्हारा रंग भी मेरे जैसे काला हो जाएगा, फिर तो तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगोगी। हाँ, क्या तो तुम सही रही हो कभी? अगर मैं तुम्हें खा लूंगी तो मेरी तो सारी ब्यूटी ही खत्म हो जाएगी। मगर क्या करूं, मजबूरी है, जिंदा रहूंगी तो ब्यूटीफुल लगूंगी ना। प्लीज चील बहन, मुझ पे रहम करो, मुझे छोड़ दो, मेरा कालू घर पे मेरा इंतजार कर रहा होगा। चील तो बहुत दिन से भूखी थी, कव्वे की मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं होता, वो तो कव्वे को पकाने का इंतजाम कर रही होती है। दिल तो चाह रहा है इस कव्वे की कव्वा बिरयानी बनाकर खाऊं, मगर ये भूख इतनी देर बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तो इसका सूप ही बनाकर पीऊंगी। मगर ये लकड़ियाँ थोड़ी कम है, जंगल जाकर और लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। और फिर चील सुंदरी कवि का सूप बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है और बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती है और बड़े से बर्तन में पानी डालकर सूप बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। कालू कौवा बहुत देर से अपनी बीवी सुंदरी को ढूंढ रहा था कि अचानक उसकी नज़र चील पर पड़ती है, जो बड़े से पतीले में पानी उबाल रही थी और उसके पास ही उसकी प्यारी सुंदरी जाल में फंसी हुई बैठी थी। सुंदरी, तो कितनी अच्छी लग रही है जाल में फंसी हुई, मेरा तो दिल खुश हो गया आज। अरे चील बहन, मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? इस सुंदरी ने तो मुझे बहुत ही तंग कर रखा था, आपने ये बहुत अच्छा किया कि इसको जाल में बंद कर रखा है, अब मैं आजाद जिंदगी गुजारूंगा। बेशरम कालू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू तो बिल्कुल ही अकल से पैदल है। अगर तुम दोनों की मीटिंग खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपना पुलाव बनाना शुरू करूं? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे चील दीदी, ये कव्वी तो बहुत ही कड़वी कसैली है, अगर इसी तरह इसका सूप बनाकर पियोगी तो तुमसे तो पिया ही नहीं जाएगा। हमारे जंगल से एक कव्वा मसाला मिलता है, उसका सूप बनाकर पियो, बहुत मजा आएगा। तुम रुको, मैं अब भी तुम्हारे लिए वो मसाला लेकर आता हूँ। अरे हाँ, इसका इतना काला रंग देखकर तो मेरा पहले ही सूप पीने का दिल नहीं कर रहा। ठीक है, तुम जल्दी अपने जंगल से जाकर वो कव्वा मसाला ले आओ, मैं जल्दी से सूप बनाकर पीना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बस 2 मिनट में गया और 5 मिनट में वापस आया, अभी देखना। कालू को वो मसाला लाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी बाइक पर बैठता है और मसाला लेने के लिए भागता हुआ जाता है और फिर वो हॉस्पिटल जाकर तोते को सारी बात बताता है और उससे वो मसाला लेकर जल्दी से चील के पास पहुंच जाता है। ये लो चील बहन, ये मसाला सूप का बहुत मजे का है, इसे डालो और खूब मजे से इस सुंदरी का सूप पियो। कालू कौवा वो मसाला चील को देता है और वो सूप में डाल देती है, मगर चील कहती है कि मैं पहले सूप को चखूंगी और फिर सुंदरी को अंदर डालूंगी। मगर जैसे ही वो सूप को चखती है, उसे क्या पता था
वो सूप मसाला नहीं, वो तो जहर था। वो पीते ही चील तो वहीं पर गिर जाती है और मर जाती है। अरे वाह मेरे कालू जी, तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग लड़ाया है। इस चील के पास तो बहुत सारा खाना है। चलो अब हम दोनों लेते हैं और अपने घर की तरफ चलते हैं। आखिर उन दोनों को उनकी समझदारी उनको चील का खाना बनने से बचा लेती है और वो चील का सारा खाना लेकर वहां से भाग जाते हैं। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मज़े की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब